I sir. start now? Okay. Yes, This sir. we are discussing these trigonometrical formula. So cos to theta का second and third relation can be obtained from this since sin square theta plus cos square theta is equal to 1. तो यहाँ से हम लोग sin square theta को रिप्लेस कर सकते हैं. ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो विल गेट दिस 2 cos square theta minus 1. और अगर हमने cos को रिप्लेस किया यहाँ से cos square theta will be 1 minus sin square theta. ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो विल गेट द सेकंड रिलेशन 1 minus 2 sin square theta. All right, so this was simple, but most of the time we don't have the 2 theta. Generally we have the relation with theta only. For example, cos theta, यहाँ पर 2 theta है और यहाँ theta है. एंगल आधा हो गया तो इधर भी हाफ हो जाएंगे. Here it will be cos square theta by 2 minus sin square theta by 2. All right, और यहाँ पर भी theta by 2 हो जाएगा. Here also theta by 2 will be there. लेफ्ट साइड में अगर थीटा है तो इधर एंगल्स विल बी हाफ, बिकॉज लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या था 2 थीटा था. राइट साइड में वी गेट थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा ओनली. लेफ्ट साइड में थीटा है तो राइट साइड में थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे ऑल द एंगल्स, ऑल द थीटास. सो मोस्टली वी कम अक्रॉस सच सिचुएशंस. It can be done the similar way which we have done in the this. Okay, so these are the formulas we are needing in the chapters of the vector, next chapter में. Okay, तो ये जो second one was there, cos log 2 will be equal to log 1 plus 1. तो यहाँ पर x is equal to 1 है तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. सेकंड टर्म -1/2 है ना, तो -1/2 और x is 1 उसका स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 1/3 x का क्यूब 1 हो जाएगा. उसके बाद -1/4 आएगा. इट इज अप टू, जब व्हेन वी पुट डॉट 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 इट गोज अप टू इंफिनिटी, तो सीरीज विल बी गोइंग अप टू इंफिनिटी. प्लस 1/5 आएगा एंड सो ऑन. एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस, प्लस माइनस एंड नंबर्स बढ़ाते जाना. यहाँ पर 1/1, then 2, then 3, then 4, then 5 डिवाइड में and so on. This series will go up to infinity. So that is how in one of the numericals this series was obtained, and in place of this it was in options log 2 was given. So student got confused कहाँ से ये आ गया. So it is nothing but from this formula we get this series. Series is not finite, it is infinite. When we do like this dot dot dot, it goes up to infinity. All right. So you had some of you had the confusion, but it will be like this. Now this was done, there is no problem here. Right? Now suppose next one is some sort of series. When we add some, when we solve some of the problems like gravitation में या center of mass में या फिर electricity में, तो sometimes we get like this series ऐसे मिल जाती है. Say 2 + 4 + 6, एक definite difference की है. देखो, they all the numbers have certain difference. You see the difference, how much it is there in consecutive terms. 2 का difference है. It is increasing with the difference of 2. है ना? तो first term is denoted by A
first term is denoted by a, which is equal to 2, and difference between them, any two consecutive term, is called difference. It is called common difference. Common है, सभी में common है, which is denoted by d, which is equal to, common difference is denoted by d, which is equal to 2 in this case. Second term देखो, अगर हम difference के terms में generalize करें, second term will be a plus d. d का difference है, add कर दो first term में, first term is a, second term को d add कर दो, third term में एक और d add कर दो, third term will be a plus 2d, like this. This type of series is called arithmetic progression. ऐसी series को maths में AP नाम दिया है. This you will be studying in the maths, but we need here what will be the addition of this. इस टाइप की अगर situation हो जाएगी तो हम उसको add कर सकते क्या, if number of terms are more, and up to few terms, so you can directly add it. But suppose number of terms are 50 या 100 या infinite, and like this. Infinite में तो infinity हो जाएगा answer. But if they are large numbers of terms, then we should have some formula for addition. So let's see. AP series में एक difference, equal difference होता है दो consecutive terms में. A is called first term, D is denoted by common difference. Then AP series will be given like this. A plus second term will be A plus D, like this. This is the DP series only. इसका general formula ऐसा आएगा. A general relation A plus D, A plus 2D, A plus 3D. D का difference add होता जाता है सब में. So this type of sequence or series is called arithmetic progression. In general, its general terms will be, general terms क्या हो सकता है बोलो? General terms क्या होगा? nth term will be a plus n minus 1d. एक कम चल रहा है देखो, सेकेंड टर्म में d है, थर्ड टर्म में 2d है, फोर्थ टर्म में 3d है, nth टर्म में n minus 1d होगा. तो इसका जनरल टर्म हो गया. Sometimes we may have to find out, but we will not be finding out this. We will be required to add the terms. ये वाला चाहिए हमें. Sum of AP for n terms. n terms का sum होगा n by 2, bracket में 2 twice of the first term and n minus 1d. Clear? Suppose ये सीरीज है, ये इसमें a कितना है 2 है, d कितना है, d भी 2 है, तो इसको ऐड कर सकते क्या? या फिर इसको करो. If a is 1, d is 2 for any AP, add for 10 terms. 10 terms को ऐड कर लो, ऐड करो फार्मूले में वैल्यू पुट करके. You have to remember this formula. I think मैथ्स में ये हो गया तुम लोग, है ना? This is done in your maths lectures. Yes, sir. ठीक है, तो easy for you, but bio student के लिए it is required to be taught, है ना? ठीक है, तो इसको कर लेना, इसको सॉल्व करके भेजो कितना आंसर आ रहा है. You can do it easily. But physics में हमें we need this only, that's all. ये फार्मूला चाहिए. Even this is also not required. ये भी नहीं चाहिए, बस यही चाहिए. So in this question, it is written add over there. Yeah. AD Add for and 10 add. terms. Add and कर दो. Okay, sir. Add for 10 terms. N is the number of terms, है ना? For n terms यहाँ पे लिखा है ना? Another number of terms. ठीक है, हो जाएगा. Now suppose next one is,
तो इसको ऐड कर लेना, देखना कितना आ रहा है. जस्ट one question is sufficient for physics point of view. Now suppose कोई सीरीज ऐसी है, फर्स्ट टर्म 1 प्लस सेकेंड टर्म 1/2, थर्ड टर्म इज 1/4, fourth term is 1/8. What type of this? What is the name of this series? This is done. Progression. Yes, sir. क्या बोलते हैं इसको? Harmonic progression. Geometric progression. GP. क्या उसका आइडेंटिफिकेशन है? How do we explain in the maths? So in that we have to first find the common ratio, and if it's Okay. Common ratio is constant, then it is GP so series. its common ratio will be the second term upon first term, like that. A2 upon Okay. A1 and A3 ठीक upon है. A2. तो two consecutive terms का ratio is called common ratio, है ना? So if it Yes, is sir. equal, if it is common in all the cases, then it is GP series, है ना? Yes, sir. और इसका sum क्या होता है? What is the formula for sum of the infinite terms in case of common ratio is less than 1? Formula याद है sum Sn का? is equals to हाँ. R n minus 1 Okay, upon चलो. R minus. ठीक है. तो देखो, अगर ऐसी कोई सीक्वेंस आ रही है जिसमें सेकंड एंड फर्स्ट टर्म का रेशियो इक्वल है, थर्ड एंड सेकंड का रेशियो, दो कंसेक्यूटिव टर्म का सेम रेशियो आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म को तो ए सिंबल देते हैं. कॉमन रेशियो इज द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, रेशियो ऑफ द सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म. सेकंड टर्म क्या है? 1/2. फर्स्ट टर्म क्या है? 1. तो 1/2 हो गया. थर्ड एंड सेकंड का 1/4 अपॉन 1/2, तो ये भी 1/2 आ रहा है. अगर सभी में दो कंसेक्यूटिव उसका थर्ड एंड 2 का, 2 एंड 1 का, फोर्थ एंड थर्ड का रेशियो अगर कांस्टेंट आ रहा है, तो सभी में 1/2 आ रहा है. तो चेक है ना, ये डबल हाफ होता चला जा रहा है ना. सेकंड टर्म फर्स्ट का हाफ है, थर्ड सेकंड का हाफ है. तो इस तरह के जो रेशियो, अच्छा इसमें टर्म्स देखते हैं. फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म क्या है? देखो 1 × 1/2. थर्ड टर्म क्या है? 1 × 1/2 × 1/2. तो ये जो रेशियो है उसको कॉमन रेशियो बोला जाता है. सिंबल इज गिवन आर. तो पहला टर्म 1 हो गया, दूसरे में 1 × आर कितना आया? अपना हाफ आया. आर इज कमिंग, रेशियो 1/2 आ रहा है. दिस इज द फर्स्ट टर्म है. तो यहाँ पर एक बार हाफ आया तो आर, यहाँ पे दो बार हाफ आया तो आर स्क्वायर. इस तरह का जो जनरल इक्वेशन होती है इसको बोला जाता है geometric progression. Okay, if A is the first term, R is the common ratio of two successive terms, then GP series is written like this: A plus AR plus AR square plus ARQ and so on. इसमें nth टर्म क्या होगा? देखो, सेकेंड टर्म में पावर 1 है, थर्ड में 2 है, एक पावर कम है, थर्ड में 2 है, n में n-1. तो nth term will be AR to the power n-1, but we are required to do the sum only. ठीक है. Sum of GP series if R is less than 1, तो ये sum होगा उसका फर्स्ट टर्म into 1 minus R to the power n upon 1 minus R. और अगर R greater than 1 है तो ये इधर आ जाएगा, 1 पीछे चला जाएगा, R वाला टर्म आगे आ जाता है. ठीक है. And for infinite series, sum of the infinite GP series if R is less than 1 will be given by this. ठीक है. ये होता है, ये फार्मूला हमें लगता है फिजिक्स में ओनली इनफाइनाइट सीरीज का वी नीड इट. ठीक है. दिस यू हैव टू रिमेंबर.
sum of infinite series if r is less than 1. ठीक है, तो अगर रेशियोज इक्वल है दो सक्सेसिव टर्म्स के, फर्स्ट का 1 के साथ, थर्ड का 2 के साथ, देन इट विल बी जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में जीपी बोलते हैं सर. तो ये लगता है ये हमें सम ऑफ द चैप्टर्स में, 2-3 चैप्टर्स में हमें इनफाइनाइट सीरीज का सम करना पड़ता है. तो वी हैव टू रिमेंबर a upon 1 minus r for infinite series when r is less than 1. r less than 1 है तो कुछ फाइनाइट आएगा, सम विल बी फाइनाइट, इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइनाइट होगा. r ग्रेटर देन 1 है तो तब क्या होगा, इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. नंबर बढ़ता चला जा रहा है ना, नंबर ऐड बढ़ते चले जा रहे हैं, इनफाइनाइट का इनफाइनाइट आ जाएगा. बट लेस देन 1 है तब फाइनाइट आएगा, इट विल बी फाइनाइट, फाइनाइट वैल्यू आएगी कुछ. तो जीपी के प्रॉब्लम्स, एक मिनट, जस्ट लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस देयर, थोड़ा सा होल्ड ऑन. In Nagpur, one day they will make the road, next day they will break it again make it, again break it. 365 days कुछ ना कुछ चलता रहता है इनका रोड का. ओके, क्लियर? कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सीरीज का वी आर रिक्वायर्ड टू डू इन 2-3 चैप्टर्स, जीपी सीरीज का. और समटाइम्स फाइनाइट सीरीज में भी रिक्वायर्ड है, तो ये भी रखना है, याद रखना है. देयर में भी finite decreasing series, finite series having the ratio less than 1 वाला. इसी से आएगा, देखो ये इससे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा. इसमें अगर हम इनफाइनाइट पुट कर दें तो ये 0 हो जाएगा. r सपोज 1/2 है, उसको इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई करते चले जाए तो 0 हो जाएगा, इट विल बी अप्रोचिंग 0. तो क्या बचा इसमें, a upon 1 minus r ही तो बचा. ठीक है, तो नोट डाउन दिस, एक इसका क्वेश्चन भी कर लेना ये. इफ a is 1, r is half for GP series, then add its infinite terms. ठीक है, इनफाइनाइट टर्म तक उसको ऐड करो तो लास्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सिंपल. बट ऐसे दिया नहीं होगा, तुम्हें सीरीज दी होगी. ओके, एक काम करते हैं, ये वाली सीरीज लिखते हैं, रुक जाओ, इसको ऐड करो. लेट मी कॉपी इट, डोंट डू दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो. आई एम रिमूविंग दिस. क्वेश्चन ये है, ऐड फॉलोइंग सीरीज following infinite series up to infinite. 1 plus half plus 1/4 plus 1/8, नेक्स्ट टर्म ऐसे आधा आधा होता जाएगा. every term is divided by 2, every successive term is divided by 2. ठीक है, तो like this situation you may get तो up to infinite series. so this is the homework problem, solve and send. ठीक है,
Noted. Then ये मीन we don't, ये छोड़ सकते हैं. अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन आर नॉट रिक्वायर्ड, दे आर नॉट रिक्वायर्ड. यहाँ पे आ जाओ. दिस वन. In some of the chapters we are required to add the n नेचुरल नंबर्स. 1 से लेकर 50 तक ऐड करना पड़ सकता है, 1 से 100 तक भी ऐड करना पड़ सकता है ना. सम ऑफ द चैप्टर्स में चार्जेस होते हैं या मासेस होते हैं, दे आर केप्ट एट, दे आर जस्ट रिक्वायर्ड टू बी एडेड. तो फार्मूला क्या होगा? n नेचुरल नंबर्स हैं तो फार्मूला जो आता है इसका n plus 1/2, where n is the last term. नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं? ये 1 2 3 4 5, तो 10 तक अगर हमें ऐड करना है ना, तो लास्ट टर्म कौन सा है? 10 है. 10 10 + 1 11 हो जाएगा, नीचे 2, 10 डिवाइड हो जाएगा 2 से, 5 × 55 आ जाएगा. फर्स्ट 10 टर्म्स का एडिशन नेचुरल नंबर्स का 55 होता है. अगर ये 20 तक होते तो 20 × 21/2, 10 × 21, नहीं सॉरी 20, हाँ नीचे 2 से डिवाइड कर दें, 210 आ जाता है. 100 तक होते तो ओके 100 का करना है, 100 तक ऐड करना है यूजिंग दिस फार्मूला होमवर्क में. ठीक है. दिस इज डन इन द मैथ्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. Yes, sir. ओके 10th में था क्या? No, sir. अभी 11th में है. ओके ठीक है, ये याद रखना है. सम ऑफ द समटाइम्स वी आर रिक्वायर्ड टू डू इट. बायो स्टूडेंट को खासतौर से सेंटर ऑफ मास का जो चैप्टर होता है ना, उसमें कभी कभी काम आता है. एनसीईआरटी बुक में रोटेशनल मोशन के चैप्टर में ही सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है. जस्ट नोट डाउन क्विकली. ठीक है. अगर स्क्वायर्ड है, सम ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर्ड एन नेचुरल नंबर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर में सपोज 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n टर्म्स, तब क्या फार्मूला आता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स is given by n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. फार्मूला याद रखना पड़ेगा इसमें. देयर इज नो अदर वे. अगर कुछ इजी मेथड है तो बताओ. n इज द लास्ट टर्म है ना. ठीक है, इसको होमवर्क में कंप्लीट कर लेना, देखने क्या आ रहा है. 10 × 11 × 21/6 है ना. ठीक है. यहाँ पर n विल बी 10 इन दिस केस है ना. अगर क्यूब है तो सम ऑफ क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, उसमें जो
उसमें जो हमने फर्स्ट वाला जो पढ़ा था n इंटू n प्लस 1/2, उसी का स्क्वायर है। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके रखो, यू मे नीड इट। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ही है ये, और ये इंडिविजुअल टर्म्स का क्यूब है। ठीक है, दिस यू कैन कंप्लीट इट। दिस इज देयर इन मैथ्स। कौन से चैप्टर में है? Sir, sequences and series. ओके, ऑलराइट। नाउ लॉग फंक्शंस हमें जरूरत पड़ती है फिजिक्स में। मैथ्स में हुए हैं क्या लॉग? देखो, सपोज वी हैव 100 है। सपोज 100 को हम we can write like this: 100 is equal to 10 square, and 100 can be written as 10 square। ठीक है, तो 100 का log base 10 is equal to 2। तो इसमें क्या है देखो, okay, just we'll start like this। Suppose if we have the number a b c 3 digits है अपने पास, 3 constants हैं, such that a is equal to b to the power c, then log of a base b is equal to c। अभी कोई तीन डिजिट्स हैं, इस तरह से उनका रिलेशन है, b to the power c is equal to a। in that case log a base b is called base here, will be equal to c। देखो यहाँ पे कैसे लिखा, जब हमने इसका log लिया तो b जो है नीचे आ गया, b has come here, बेस में चला गया, और c यहाँ पर आ गया। जब हम a का log ले रहे हैं, है ना, b राइट साइड में जो b था वो इट इज कमिंग टू बेस, c इज कमिंग इक्वल टू, इन फ्रंट ऑफ इक्वल टू। तो इस तरह से अगर तीन डिजिट्स हैं, तीन नंबर्स हैं या तीन कांस्टेंट हैं, इफ दे आर रिलेटेड लाइक दिस, तो उनका लॉग का रिलेशन ऐसे होगा, वेयर b इज कॉल्ड बेस, c इज द रिजल्ट ऑफ दिस log a। ठीक है, फॉर एग्जांपल if we take 100 is equal to 10 square, which in fact 10 square is equal to 100 होता है। in that case log of 100 base 10, ये यहाँ पर आ गया, will be equal to 2, पावर नीचे आ जाएगी। तो what we say, value of log 100 base 10 is equal to 2। Similarly 10 to the power 3 is equal to 1000, or 1000 is equal to 10 to the power 3। therefore log of 1000 बेस नीचे आ जाएगा 3,
राइट के सामने आ जाए, इक्वल टू के सामने आ जाएगा। तो log ऑफ 1000 एट बेस 10 इज इक्वल टू 3। जितने जीरो है वही उतना नंबर आ रहा है। इसमें कितने जीरो है? 2। तो इसका 100 का 2 होता है। 1000 में कितने जीरो है? 3। तो उसका 3 होता है। ऐसे log 10 का कितना होगा फिर? 10 को हम क्या लिखते हैं? 10 टू द पावर 1। तो log 10 का 1 आ जाएगा। तो log 10 में कितने जीरो है? 1 जीरो है, तो इसका 1 आता है। बेस 10, बेस में 10 होना चाहिए। बेस 10 को कॉमन लॉग बोलते हैं। log बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉग। बेस 10 से जब डील करते हैं, वही लॉग टेबल में बेस 10 से ही सारे रिजल्ट होते हैं। आर यू गेटिंग इट? बेस 10 के टर्म्स में ही हमें लॉग टेबल होती है। एवरी टाइम वी मे नॉट गेट बेस 10। देखो यहाँ पे देखो, 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। तो log ऑफ 8, ये मैंने क्या होता है, ये वाली डिजिट नीचे बेस में चली जाती है, पावर वाली सामने आ जाती है। तो log ऑफ बेस 8, log ऑफ 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। बट वी आर नॉट गोइंग टू हैव द बेस 2 वाले कोई टर्म से डील नहीं करेंगे, बेस में 10 वाले से डील करेंगे। तो ये हमने जस्ट प्रैक्टिस के लिए, वी आर सीन इट जस्ट हाउ टू राइट इट। ठीक है, तो log 100 का वैल्यू 2 होती है, log 1000 की वैल्यू 3 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, लाइक दिस। ऐसे कुछ log ऐसा कुछ आ गया तो log 5 बेस 10, तो हमें log टेबल देखना पड़ता है हमें, क्योंकि वी कैन नॉट रिमेम्बर ऑल द वैल्यूज। बेस 10 तो ठीक है, बट 5 है यहाँ पर, तो इसके लिए log टेबल रेफर करना पड़ेगा। log टेबल लुक्स लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखती है log टेबल, इस तरह से दिखती है। तो वी आर गोइंग टू लर्न इट, बट हमें अगर वो 10 या 100 या 1000 नहीं है, कुछ और है, 5, 9, 11, 15, 19, तो इस तरह से log टेबल की हमें log टेबल देखनी पड़ती है। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉग। एंड कभी कभी, हाँ यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी log 10 is called, log base 10 is called common log, and log tables common log में होती है। log tables are in common log, but integration में या differentiation में log में base e आता है, ln आता है। ln का मतलब नेचुरल लॉग, n स्टैंड फॉर नेचुरल, l स्टैंड फॉर लॉग। उसको हम लोग log base e बोलते हैं। दिस इज इन द इंटीग्रेशंस, कैलकुलस में इंटीग्रेशन एंड कैलकुलस में इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में फार्मूले इसमें होते हैं। तो बट हमें लॉग टेबल देखनी है, तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है? देखो, नेचुरल लॉग एक्स, बोथ आर सेम, ये दोनों सेम है। नेचुरल लॉग एक्स इज इक्वल टू 2.303 कॉमन लॉग एक्स। कॉमन लॉग मतलब बेस 10, बेस 10 में कन्वर्ट करना है, लॉग बेस ई है, ln मीन्स बेस ई, बेस 10 में कन्वर्ट करना है x को, तो 2.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2.303 है, बट अगर हमने ये हटा भी दिया तो 2.3 विल डू। 2.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नेचुरल लॉग में कोई टर्म दिया है, सपोज हमें ऐसे दिया है, फॉर एग्जांपल नेचुरल लॉग 10 दिया है, तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी? 2.3 कॉमन लॉग
10 हो जाएगा बेस 10 में, कॉमन लॉग 10 में मैंने बताया ना 10 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे देखो लिखिए जितने 0 है वही वैल्यू हो जाती है, 1 0 है तो 1, 2 0 है तो 2, 3 0 है तो 3, तो it will be equal to natural log 10 will be equal to 2.303. ठीक है, 2.3 लिख सकते हैं, चलो clear. Unmute and ask if you have any problem. Just unmute and okay. दो पॉइंट और बता दो, then you can ask. दो फार्मूले भी हमें इसमें सीखने पड़ते हैं. फर्स्ट फार्मूला इज log a into b will be log a plus log b. It is valid for both the log, common log and natural log. And log a by b is log a minus log b. इनटू में प्लस आता है यहाँ पर, डिवीजन में यहाँ माइनस आता है, और इसमें क्या आएगा फिर a प्लस बी में क्या आएगा, इसमें ये दोनों डिजिट्स होंगी, नंबर्स होंगे, उसको पहले ऐड कर लो फिर लॉग टेबल में देख लो उसकी वैल्यू, है ना. इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कुछ ना कुछ लॉग के लॉग आएगा, 10 20 30 40 कुछ भी आ सकता है, 15 17 19 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, तो बस एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा सब कुछ, है ना. तो इसलिए उसका फार्मूला नहीं होता, कॉमन सेंस से कर सकते हैं. ठीक है, इनटू में प्लस, डिवीजन में माइनस. तो दीज आर द फार्मूलाज यूज्ड इन डिफरेंट डेरिवेशंस डीलिंग विद द लॉग एंड, और ये तुम्हारा कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग का लॉग टेबल, कॉमन नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करके और लॉग टेबल में वैल्यूज देख ली जाती है. बट व्हाई एट ऑल वी आर लर्निंग, एक तो डेरिवेशन में काम आते हैं, बिकॉज कैलकुलस में जो भी रिजल्ट आते हैं एक्सपोनेंशियल के, लॉग के, वो that results are required, derivations are required, है ना, in subsequent chapters. but ये कॉमन लॉग क्यों सीखते हैं, कैलकुलेशंस करने के लिए. फॉर एग्जांपल हमें कुछ ऐसा कैलकुलेशन करना है, y is equal to 1.23 into this divided by this, इसको काफी टाइम लग जाएगा, बट लॉग से जल्दी हो जाता है ये. ठीक है, तो therefore log tables are used. क्लियर. तो लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं अभी मैं सिखाऊंगा. तो दिस मच यू आर सपोज टू नो लॉग के बारे में. ठीक है, after this we are going to learn about how to see the log table. Just note down, if you have any difficulty you can ask also. ठीक है, तो we'll learn how to see the. Somebody had taught you, nobody taught you, no, so far. Yes. Sometimes chemistry teacher may teach you. कराया क्या मैम ने?
900. ओके ठीक है, आई एम टीचिंग यू हाउ टू सी द लॉग टेबल। तो ये दो फार्मूले हमें काम आने वाले हैं, ठीक है। दिस डॉट में प्लस, इनटू में प्लस और डिवीजन में माइनस। तो देखो एज आई टोल्ड यू, जस्ट मिनट,